Density at 30 degree 0.86, loading temperature 2% of the volume to be left for expansion. So I have to calculate the mass and the ullage. So volume of tank straight away he has given me 3000 cubic meters. Volume to be left for expansion or to be allowed for expansion 2%, isn't it? So 2% of this 3000 into 2 upon 100 is equal to 60 meter cube. Now how much volume is available for me for loading? Volume available कितना होगा? 2940 cubic meter. 3000 minus 60, isn't it? 2940 meter cube. अब मेरे पास इतना वॉल्यूम है लोड करने के लिए एंड मेरे पास डेंसिटी है 30 डिग्री पे, बट आई एम गोइंग टू लोड एट 38. सो डेंसिटी एट 38 क्या हो जाएगी? विल बी इक्वल टू 0.86 minus, why? Because I am loading at higher temperature. Density given is at 30 degrees less. Difference in temperature 38 minus 30 into the factor. New density at 38 degrees Celsius 0.8552. 0.8552. Okay, very good. Now mass of oil loaded is very simple. I have the Volume into density at 38 degrees Celsius. Correct. 0.8552 कितना आ गया? 2514.29. Yes, sir. 4.29 metric ton. तो ये आपका एक आंसर हो गया. Now to calculate the ullage. To calculate ullage. Now यहाँ पे तो easy है. I know the volume. I know the tank. Can you calculate what is the area of the tank? Yes, sir. Yes, sir. Divide by 10. Very right. So मेरे पास area of the tank is there. So I want to calculate the ullage. Volume available is 2940. Area of tank is equal to 3000 divided by 10 is equal to 300 square meter. Now it is very simple. If I divide the volume by area, I get the height of oil. So therefore, height of oil in the tank will be 2940 divided by 300. 9.8. So ullage will be 0.2 meters. Yeah, 9.8 meter. Now again, just to understand, यार ये मेरा ऑयल है यहाँ तक. I have got this 9.8. So this is the ullage. तो ये कितनी होगी? 10 मीटर इसकी हाइट है. 10 minus 9.8 is 0.2. Therefore, so आपने लिखना कैसे है? Therefore, the ullage is 10 minus, or you can write here, height of tank minus height of oil is equal to 10 minus 2 equal to 10 minus 9.8 equal to 0.2 meter. minus 9.8 is equal to 0.2 मीटर. तो ये आपका दूसरा आंसर आ गया. क्लियर? तो इसमें आपने हाइट निकालने के लिए ये 2940 लिया है और एरिया के लिए 3000.
वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? Length into breadth into height. Length into breadth into height, isn't it? What is this length and breadth? If I divide Area. this volume by length and नहीं breadth, कहाँ ले आता सर, हूँ? मेरा डाउट है, ये आपने 2940 लिया ना यहाँ पे, Yes. तो हम लोग हमेशा वॉल्यूम अवेलेबल लेंगे, Yes. टोटल वॉल्यूम नहीं लेंगे, ये Of डाउट. course. Yeah. How much oil I have loaded? I have loaded only up to here, isn't it? ओके सर, ओके, थैंक यू. 2% तो मैंने एक्सपेंशन के लिए टैंक को खाली छोड़ दिया. 98% मैंने लोड किया है, तो मेरे पास वॉल्यूम 2940 अवेलेबल है. ये टोटल वॉल्यूम जो है, दिस इज 3000. समझे बच्चे? क्लियर? यस सर, यस सर. तो हाइट ऑफ ऑयल निकालने के लिए हम वही लेंगे वॉल्यूम जितने पे हमने ऑयल लोड किया है, वो 2940 में. ओके. अब यहाँ पे किया मैंने इतनी स्पेस तो छोड़ दी थी खाली. मैंने इतने पे ही ऑयल को लोड किया. अब इस ऑयल की हाइट मैंने निकालनी है. इसको मैं एरिया से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास हाइट ऑफ ऑयल आगे भी ऑयल जो है 9.8 मीटर है. बॉटम से लेके 0.2 मीटर जो है वो आपके पास एम्प्टी है. दैट इज ऑल स्पेस. तो 0.2 मीटर आया, देन वी विल स्टॉप इट. ओके. अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको कहता हूं. अब यहाँ पे तो उसने कहा 2% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टैंक टू बी लेफ्ट फॉर एक्सपेंशन. नाउ आई से द 2% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑयल टू बी लेफ्ट इज टू बी लेफ्ट फॉर एक्सपेंशन. अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया. लोडिंग टेम्परेचर दिया, आई कीप एवरीथिंग सेम. 2% of the volume of oil to be loaded is to be left for expansion. Then calculate 2% of the volume of oil to be loaded is left for expansion. अब इसको कीजिए. Sir, 0.196 sir, allege. Okay, very good. And mass? मास कितना आएगा? Sir, 2515.31. Very good. चलो थोड़ा बाकियों को भी अटेम्प्ट करने दीजिए. Excuse me sir. हाँ जी. सर इसमें हमने जैसे मास ऑफ ऑयल लोडेड लिखा है इतना मेट्रिक टन, तो सर अगर हम टन लिखेंगे तो कोई दिक्कत है सर, क्योंकि टन और मेट्रिक टन में डिफरेंस क्या होता है सर? एक ही बात है बच्चे. नाउ वी आर इनटू द मेट्रिक सिस्टम, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द ओल्ड सिस्टम की. सो मेट्रिक टन और टन इज अगेन सेम. मेट्रिक टन में वी आर इनटू द मेट्रिक सिस्टम. टन इसका मतलब है दिस इज 1000 kg. Okay, so we are not discussing short ton and long ton. Americans do this short ton, long ton. So we are handling only this is metric ton, means 1000 kg वाला टन. ठीक है. सो आप जैसे टन लिख दीजिए, मेट्रिक टन एक ही बात. सो नॉर्मल वी आर यूजिंग दैट, वी आर इनटू मेट्रिक सिस्टम, तो हम इसे मेट्रिक टन लिखते हैं, मींस मेट्रिक सिस्टम.
सर सेकंड पार्ट समझा दीजिए। ये वाला अलेज का यही जो आपने अभी रेड से लिखा है। ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे तो था हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टैंक इज 3000, वॉल्यूम टू बी लेफ्ट फॉर एक्सपेंशन वाज 2%, मैंने निकाला 60 आ गया, isn't it? अब इस केस में क्या होगा, ये जो वॉल्यूम अवेलेबल है और वॉल्यूम लेफ्ट टू बी लेफ्ट फॉर एक्सपेंशन, ये चेंज हो जाएगा। अब ये कैसे चेंज होगा, what is our volume, total volume is 3000, so I assume let V be the volume of oil to be loaded. Now that means V plus वो कहता है 2% of the oil to be loaded. So we have taken V as the volume of oil to be loaded. That means V plus 2% of V plus 2% of V क्या हुआ, 2/100. This should be equal to the tank volume, isn't it? That I am assuming V is the amount of oil I am going to load and 2% of this V is to be left for expansion. तब आपका जो टोटल टैंक है वो 3000 के बराबर होना चाहिए। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सो V प्लस दिस विल बी 0.02 V इज इक्वल टू 3000, V प्लस 0.02 V इज इक्वल टू 0.02 V इज इक्वल टू 3000। तो V की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3000 डिवाइड बाय 1.02, कितनी आई बच्चे? 2941.17। या 2941.176, चलो हम 17 तक ही रखते हैं। ये V क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ ऑयल टू बी लोडेड, सो दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ ऑयल टू बी लोडेड इज इक्वल टू दिस मच। पहले हमारा कितना था 2940, अब आपके पास आ गया वॉल्यूम टू बी लोडेड इज सो मच। सेम डेंसिटी हमने निकाली थी, आपका मास भी उसी से आ जाएगा। मास जैसे पहले स्टेप्स लिखे थे वही, डेंसिटी को उसी तरह से करेक्ट कीजिए जैसे हमने प्रीवियसली किया था। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एट 38। तो अब यहाँ पे आ गया 2941.176 इंटू कितनी थी डेंसिटी, 8552। 85552। इसका आंसर आ जाएगा 2515.3 मेट्रिक टन। एंड सिमिलरली अलेज के लिए इसी वॉल्यूम को मैं एरिया से डिवाइड करता हूँ। क्लियर, अंडरस्टूड। अब वो यहाँ पे 2% ऑफ ऑयल, 3% ऑफ ऑयल, कितना भी परसेंटेज चेंज करे, सो आई नो दैट वी बी द वॉल्यूम 2%, 3%, 4%। आई थिंक यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट 2%, 3% कितना होता है। दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। ठीक है, अंडरस्टूड। चलें आगे। यस सर। सर इसको हम 2% एक्सपेंस के लिए दे रखा है, तो सर 98% कंसिडर करके भी कर सकते हैं सर। बच्चे इसमें कह रहा है 2% ऑफ द ऑयल टू बी लोडेड, 98% आपका पहले वाले टाइप में है, जहां पे 2% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टैंक की बात कर रहा है। यहाँ पे ऑयल की बात कर रहा है कि आपने जितना तेल लोड किया उसका 2%। पहले वाले में था कि 2% ऑफ द टैंक वॉल्यूम, एंटायर टैंक का वॉल्यूम 3000 था। Yeah, go ahead, Vinod.
Yes sir, correct sir. ठीक है, अंडरस्टूड। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या हो जाता है, नाउ एक्चुअली द शिप डज, जब शिप लोड करता है हमने एक टेम्परेचर पे लोड किया, लोड पोर्ट पे, suppose I am loading at say 30 degree centigrade, and after loading I proceed for the discharge port destination के लिए। रास्ते में मेरा टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है से 40 डिग्री, एंड आई नो कि मेरा वॉइस में मेरे को टेम्परेचर जो है मैक्सिमम 40 डिग्री तक जाने वाला है। अब क्या होगा, 40 डिग्री में जब मैं ये तेल है मैंने यहाँ तक लोड किया, सपोज आई हैव केप्ट से 0.5 मीटर अलेज रखी है मैंने। अब जब ये 40 डिग्री पे पहुंचेगा तो क्या होगा, तेल एक्सपैंड होगा, इजंट इट? तो ये अलेज Yes sir. कम हो जाएगी, इजंट इट? यस और नो? Yes sir. यस सर यस। मैंने लोड किया 30 डिग्री पे, मैंने अपने अंदाजे से कैलकुलेट किया, ओके एग्जांपल 0.5 मीटर, हाफ आ मीटर या 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर मैंने अलेज रख के, एंड नाउ इफ आई गो टू ड्यूरिंग द वॉयज आई नो टेम्परेचर इज गोइंग टू गो 40 डिग्री। अब यहाँ पे अलेज मेरी कम होगी, so it may not be good because I want all the time say half a meter मेरी अलेज होनी चाहिए थी। अब आपको ये क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्योंकि यू आर लोडिंग एंड द वॉइस टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी 40 42 जो भी है, एंड द कैप्टन वांट्स दैट देयर शुड बी at all time there is a allege of say 0.5 meter at all times, or at all times there should be 2% of the volume of the tank should be always available for expansion। मीन चाहे जहाज 40 डिग्री पे भी पहुंचता है तो ये जो अलेज है मेरी 0.5 ही रहनी चाहिए, या वो उसको एक्सप्रेस कर सकता है 2% ऑफ द टैंक वॉल्यूम शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, ताकि तेल पाइपलाइन में ना आए, ओवरफ्लो ना हो, कुछ ना हो। अब आपके पास उसने ये डेटा दे दिया कि अब वॉयज में ऑयल जो है अलेज इतनी रहनी चाहिए। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट दैट व्हाट शुड बी द अलेज एट लोड पोर्ट। अगर मेरे को यहाँ पे 0.5 चाहिए तो लोड पोर्ट पे जहां मेरा टेम्परेचर 30 डिग्री है, ये मैं अलेज कितनी रखूं, so that during the voyage at any time even when the temperature goes to 40 degree my allege should not decrease from 0.5 or 1 meter 2 meter जो भी उसने क्वेश्चन में दिया। and then he gives you density, जैसे पहले था density at 20 degree 30 degree so much। यहाँ पे आप 30 डिग्री पे लोड कर रहे हो, यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री हो रहा है, अब यहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री हो रहा है, डेंसिटी भी चेंज होगी और वॉल्यूम भी चेंज होगा, इजंट इट? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, एनीबॉडी? चलो टैंकर वाले तो कॉमन किया होगा आपने कि मेरे पे ये डेटा है कि वॉयज टेम्परेचर इतना है एंड ड्यूरिंग द वॉयज माय अलेज शुड नॉट डिक्रीज और से 0.5 1 some amount he has given,
हाउ टू कैलकुलेट, या यहाँ पे मैं कितनी अलेज रखूं ताकि मैक्सिमम टेम्परेचर पे ये अलेज 0.5 रहे। अब आपको ये भी कंफ्यूजन है कि अलेज नॉर्मली जैसे यहाँ से नहीं है, हम अलेज पोर्ट से लेते हैं, तो वो कह देते हैं चलो भाई मैक्सिमम अलेज शुड नॉट बी लेस देन 1 मीटर एंड दिस अलेज पाइप इज half a meter above deck. Alleged port. Anybody, कुछ भी आपके मन में आता है, कैसे करूंगा मैं? सर हम ये देख लेंगे सर कि एक्स लेके इक्वेशन बना के कर सकते हैं। कैसे बताइए, कुछ डोंट वरी, आप जितना बच्चे सोचोगे जितना बोलोगे, आई वांट यू टू इंटरेक्ट। सर फैक्टर नहीं दिया रहेगा, करेक्शन फैक्टर सब दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, वो डेंसिटी करेक्शन फैक्टर सब दिया हुआ। सर तो 0.5 मीटर जब हमें सर वो रखना होगा अलेज, तो 40 डिग्री सेल्सियस से सर हम मास निकाल लेंगे कि मास ऑफ द कितना रहेगा, तो वही मास हम सर इस पहले वाले पोर्ट पे, यहाँ पे लोडिंग पोर्ट पे सर वो मास हम वॉल्यूम निकाल लेंगे उससे एट 30 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। उसके बाद सर उतना ही मास हम लोड करेंगे जितना वो तो हमें उससे वॉल्यूम निकाल लेंगे सर, उससे सर वॉल्यूम वॉल्यूम को पता फिर करें कितना वॉल्यूम एरिया हम से लोड डिवाइड कर करेंगे। देंगे, एरिया आ जाएगा, एरिया से डिवाइड कर देंगे। एरिया से हाइट आ जाएगी। वेरी राइट। देखो विवेकानंद ने कैसे एकदम से अच्छा समझ लिया। यही चीज है कि अब आपने समझ लिया कि यार मेरे पास वो कहता है कि वॉइस में मेरा टेम्परेचर आपके क्वेश्चन में दे दिया, तो वॉइस टेम्परेचर इज गोइंग टू बी सो एंड सो, एंड अगर मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर रखता हूँ, टेल एक्सपैंड होके मेरा आईजी पाइप में आ जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा एग्जाम्पल। सो मेरे पास ये पैरामीटर आ गए यहाँ पे कि भाई ओके, मैंने यहाँ पे 1 मीटर या 0.5 मीटर जो भी अलेज रखनी है, चलो सिंप्लिसिटी के लिए हम कहते हैं 1 मीटर अलेज। ये टैंक की डायमेंशन 30 by 20 by 10 मीटर। दिस इज द अलेज पोर्ट। एग्जाम्पल सिंप्लिसिटी के लिए ये अलेज पोर्ट जो आपका 1 मीटर डेक से ऊपर है, एंड क्वेश्चन में कहता है देयर शुड बी ऑल द टाइम अलेज ऑफ 1.5 मीटर होनी चाहिए एट 40 डिग्री। तो अब मेरे पास पैरामीटर आ गए यार, आई कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम एट 40 डिग्री कितना होना चाहिए, इजंट इट? मैक्सिमम वॉल्यूम in my tank, maximum volume at 40 degree, I can very easily calculate। तेल जब एक्सपैंड होगा तो कितना होना चाहिए, ये 1.5 है, एंड 1 मीटर मेरी अलेज पोर्ट की हाइट है। चलो इसको यहाँ कर देता हूँ। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड शुड बी 30 इंटू 20 इंटू हाइट ऑफ ऑयल कितनी होगी मेरे टैंक में, 10 मीटर मेरी हाइट है टैंक की। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी, बोर्ड दिख रहा है क्लियर ना, कि इस तरफ लिखूं? ये सर दिख रहा है सर। ओके, 8.5 सर, ये 8.5 को हटा के है ना। या सो 10 प्लस 1 माइनस 1.5। सिंपल, कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि 10 मीटर तो मेरी टैंक की हाइट है, 1 मीटर इसकी हाइट है, तो 10 प्लस 1 इसको 11 करता हूं, बिकॉज अलेज उसने यहां से ली है, अलेज पोर्ट से। अब दूसरा तरीका है, आप कहोगे सर ये अगर आपको नहीं, मेरे को तो ये सिंपल लगता है कि 10 प्लस जितना भी अलेज पोर्ट है 1 मीटर 0.7 0.8 उसको मैं ऐड करता हूँ और अलेज माइनस कर देता हूँ, तो तब भी उतना ही आंसर आएगा। दूसरा मेथड कि सर ये 1 मीटर 1.5 है, 1 है, इसको माइनस करता हूँ तो एक्चुअल अलेज तो 0.5 आ गई, इजंट इट? तो 10 माइनस 0.5 मैं करता हूँ, 10 माइनस 0.5, तब भी आंसर मेरा 9.5 है। और यहाँ पे भी 10 प्लस 1 11 माइनस 1.1 किया तो ये भी आंसर 9.1 आएगा। 9.5 9.5 है। तो एक्चुअल अलेज पोर्ट से नहीं लेंगे। अलेज तो बच्चे अलेज पोर्ट से लेंगे ना, समटाइम्स अलेज पोर्ट इज अबव द डेक।
Sometime it can be on deck. Question में कहता है alleged port is on deck level. अब आपने ये कैलकुलेट कर लिया. So this is a method of calculating the allege कि height of tank प्लस जो alleged port की height है and minus the allege. या फिर आप alleged में से alleged port की height निकाल लीजिए 0.5. इस 10 में से मैं 0.5 माइनस करता हूं तो 9.5 आ जाता है. Whatever is convenient, simple to you. इसमें एरर के चांसेस कम है. क्या ठीक है 10 मीटर जितनी alleged port ऊपर उसको ऐड कर दो तो alleged जो है वो भी alleged port से ही ली है तो ये अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा 9.5. अब आपके पास ये वॉल्यूम आ गया. सपोज मैं इसे कहता हूँ दिस इज वॉल्यूम ए. अब इस वॉल्यूम को आई कैन मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी टू कैलकुलेट द मास. मास इज इक्वल टू ए इंटू आपकी डेंसिटी एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड. मास विल बी इक्वल टू ए इंटू डेंसिटी एट 40 डिग्री. अब आपने अपना बेसिक फंडामेंटल लगा दिया कि यार मास रिमेन्स कांस्टेंट, वो नहीं चेंज होता. वो चाहे टेम्परेचर 40 जाए, चाहे 30 जाए, चाहे 20 जाए, मेट्रिक टन इज नॉट गोइंग टू चेंज. तो ये मेरे पास आ जाता है बी मेट्रिक टन. इस बी मेट्रिक टन को मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ कि यार ये जो बी मेट्रिक टन हैं इसका 30 डिग्री पे वॉल्यूम कितना होगा. अब अदर देन विवेकानंद एंड अभिजीत दूसरा वाला कोई बताए मेरे को यार इतने मैट्रिक टन तेल है मेरे टैंक में तो इसका मैं वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करूंगा 30 डिग्री. कोई दूसरा वाला कोई भी बताओ. 30 डिग्री पे पहले उसकी डेंसिटी निकालेंगे सर. ओके वेरी गुड. सो डेंसिटी मेरे पास आ गई से, चलो मैं डी बोल देता हूँ. ये डेंसिटी आ गई, डेंसिटी है 30 डिग्री. ओके तो सर इससे मेरा वॉल्यूम आ जाएगा. वॉल्यूम को मैं एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो सर मेरी हाइट ऑफ ऑयल आ जाएगी. मास डिवाइड बाय डेंसिटी इज इट. वॉल्यूम आ जाएगा. वॉल्यूम आ जाएगा. वॉल्यूम और वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो सर मेरी हाइट आ जाएगी. तो ये बी है, जो भी मेरा मास आया था उसको मैंने डेंसिटी एट 30 डिग्री से डिवाइड किया तो मेरे पास वॉल्यूम आ गया. इस वॉल्यूम को मैं एरिया से वॉल्यूम को एरिया से मेरे पास हाइट आ गई तो मैं आलेज निकाल सकता हूँ. इतना तेल है आई कैन कैलकुलेट द आलेज फ्रॉम हियर. काटी नहीं करनी, गलत है. नीटली उसको क्रॉस किया, दोबारा से नीचे करना शुरू कर दिया, बस. उससे टाइम भी बचता है और एरर भी नहीं आती. तो मैक्सिमम वॉल्यूम आपने निकाल लिया 18 इंटू 18 इंटू 20.5. आपको हाइट ऑफ ऑयल है एट मैक्सिमम टेम्परेचर 38 पे. सो 6642 आपने वॉल्यूम निकाल लिया उसका. अब हमने डेंसिटी निकाली 38 पे, उससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास मास आ गया. इस मास को मैं 22 डिग्री पे ले जाता हूँ एंड वहां पे उसकी अलेज निकाल देता हूँ. एंड थर्ड स्टेप I calculate the density at 41. 41 minus 15 into the factor density at 41 आ गई. अब 41 पे इसकी अलेज कितनी होगी. आपके पास मास है which remains constant. Mass divided by density will give me the volume at 41. Divide by area अलेज I mean height of oil. टोटल हाइट से माइनस किया तो अलेज. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बच्चे बोलो. सर इसमें हम सबसे पहले हमें 15 डिग्री पे दे रखे हैं तो हम इसे 15 पे 22 पे लेके जाएंगे सर. नो देखिए पहले ऐसे करना है. ये लो मैं आपको स्टेप्स दिखाता हूँ. ये देखो मैक्सिमम वॉल्यूम एट 38 डिग्री इज इक्वल टू सो मच. करेक्ट. एसजी एट 38.81 minus this is equal to 0.7962. Quantity of cargo in tank volume into density at voice temperature 5288.36. straight away एक आंसर आ गया. Quantity of oil so many tons. Now to calculate allege at load port,
वॉल्यूम इंटू डेंसिटी एट 22 इक्वल टू मास विच इज कांस्टेंट। 5288 तो 5288 ही रहने वाला है। डेंसिटी एट 22 मैं निकाल लेता हूँ 0.8058 इतनी आई, इतनी आई ना डेंसिटी 22 पे। यस सर 2.8058 करेक्ट। सो अब मेरे को पता है वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम इंटू हाइट इज इक्वल टू मास। मैं हाइट कैलकुलेट कर लेता हूँ। 20.255 इज द हाइट ऑफ ऑयल एट लोड पोर्ट। अब नॉर्मली हम तेल को कैसे स्टॉप करते हैं, वी कीप ऑन मेजरिंग द अलेजेस, इजंट इट। अब अलेज चाहिए, किस अलेज पे मैं लोडिंग स्टॉप करूंगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए वेरी सिंपल, हाइट ऑफ द टैंक माइनस हाइट ऑफ ऑयल 1.744 विल बी द अलेज एट लोड पोर्ट। सो लोड पोर्ट पे मैं 1.744 पे लोडिंग स्टॉप करता हूं। जब मेरा चार्ज मैक्सिमम टेम्परेचर पे आता है 38 पे, मेरी अलेज देखो कम हो गया 1.5 पे आ जाएगी। आई एम स्टिल सेफ। अब वो कहता है वेदर तो वेदर है, सडनली द टेम्परेचर इज गॉन अप टू 41, उस पे अलेज कितनी आ जाएगी, सेम वॉल्यूम एट 41 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी एट 41 इक्वल्स मास विच इज कांस्टेंट। इसको लिख लीजिए, स्टेप्स को लिख लीजिए। तो आपको स्टेप्स भी आपने सी हो क्या रहा है, आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है बाय वे ऑफ राइटिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एंड वो सब पढ़ता जा रहा है कि यस अलेज 41 पे मेरे को मास कांस्टेंट है, इसकी मैंने डेंसिटी निकाली। सर एक बार बैक कर दीजिए Correct. पीछे स्लाइड। अपनी नोटबुक में नीटली इन क्वेश्चंस को लिखिए, नीचे आंसर लिखिए। अब जो आप क्वेश्चन करोगे आपको स्टेप्स भी पता हैं कि हाँ यार क्या क्या मैंने लिखना। कोई बात नहीं, स्टेप ये नहीं कि आपने 100% ऐसे ही होने चाहिए, एक आधा स्टेप ऊपर नीचे भी हो सकता है, सबका अपना अपना वे, बट एवरीथिंग शुड बी शोन। ज्यादा 4 पेज भी नहीं भरने मैंने, यार एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रहा, पूरी महाभारत पढ़ता ही जा रहा है, यार पहले बताओ तो सही, कुछ जो उसने आंसर देखना दिख ही नहीं रहा। नो, शॉर्ट एंड क्रिस्प, कुछ मिस भी ना हो, सब कुछ दिख भी जाए। एक्चुअली में सर, हाँ जी, अलेज 41 डिग्री सेल्सियस पे 1.454 मीटर है। 1.453 मीटर, या करेक्ट। यस सर, आंसर मैच कर गया आप सर। अरे वेरी गुड। चलो आज के लिए इतना ही है। सो प्लीज इसको आपने कॉपी पे रखना है, भूलना नहीं है। ये नहीं कि हम आगे चलते जाएं तो पीछे हम भूल जाएं, इजंट इट। सो आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट वीक में आएगा। सो आई होप आपको, आई विल नॉट से आपको पढ़ने के बाद जितना आप करते जा रहे हैं उतना आपने पढ़ के समझ के रखना है। एक बार ये हमारे सारे मेथड हो गए, फिर आप अपने पास्ट पेपर्स में जाके क्वेश्चंस को उठा सकते हो। अभी नहीं, अभी उठाओगे अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी हम थोड़ा स्टेप वाइज कर लें, फिर जब हम प्रैक्टिस पे आएंगे फिर क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। ओके, सो एटलीस्ट ये याद रखना है, नॉट सो डिफिकल्ट। वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी को चेंज कैसे करना है, करेक्शन फैक्टर से, ये प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए। कई बार एग्जामिनर आपको इंटेंशनली जो है टेम्परेचर कम दे देगा, एंड यहाँ पे हमने माइनस किया तो सब गड़बड़ हो जाता है। चलो नेक्स्ट पेज करूं, लिख लिया ये? यस